morning, students. Now, last time we did basics of derivatives, right? And I wrote about, maybe I gave you this page, right? And there were basic formula of derivatives. Derivatives is also known as differentiation. Derivatives is also known as differentiation. Now, if you see carefully over here, I have not written all formula. In fact, I gave you many. D by dx of x raised to n is nx raised to n minus 1. Power becomes coefficient and the new power reduces by 1. D by dx of x is 1. Derivative of anything with respect to the same thing is 1. D by dx of constant is always 0. Derivative of constant is always 0. D by dx of kx is k. एक में x अकेला था, एक में k अकेला था और एक में दोनों साथ में थे. D by dx of kx is k goes out, and then it is d by dx of x, which is 1, right? Thereafter we started with trigonometric functions. Derivative of sin x, cos x. Derivative of k sin x, k cos x. Derivative of sin kx, cos kx into k. And derivative of k sin kx, k square cos x. फिर उसका काउंटर पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ k cos x, minus k sin x, डेरिवेटिव ऑफ cos kx, and डेरिवेटिव ऑफ k cos kx. अभी आपके पास जो लिटरेचर है ना, मतलब ये जो वाला पेज है, उसमें खाली एक फॉर्मूला ऐड कर लो, and that is d by dx of log x. Now what is this log x? That I will explain to you later. Log x. D by dx of log x is 1 upon x. D by dx of log x is 1 upon x. मैं बोल अभी रखो टेबल पे रख दो. D by dx of log x is 1 upon x. What is this log x? That we will understand whenever this kind of questions come. अभी इसके बिल्कुल बाजू में मैंने लिखा है मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन. बिल्कुल बाजू में बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि दे आर इंटरकनेक्टेड. दे आर interconnected. Now what is the meaning of integration? Try to understand. Integration means anti-differentiation. Anti-differentiation. Basics of integration means it is anti-differentiation. Let me make it simple for you कि what is the meaning of it. एकदम ध्यान से सुनो बेटा, एकदम ध्यान से सुनो. It is something like this. To integrate means to add. To integrate means to add. And to add, there are two meanings. One is summation. One is summation. And other is integration. Other is integration. This is the symbol of integration. This is the symbol of summation. This is the symbol of integration. Integration. Now, when to use summation and when to use integration? Summation means not all. Summation means not all. Random. And integration means all. All means continuous. Still it is bouncer to you. Still it is bouncer to you. I know that. Right? It is something like this. I walk for 5 steps maybe. 1, 2, 3, 4, 5. And I covered a distance of 3 meters. Say 3 meters. So for every step practically I was walking for 0.6 meter. 0.65 is 3. But I was lifting my leg. I was lifting my leg means my legs were not touching all the parts of the road. But suppose the same distance is covered by me when I go on a cycle or a bike or when I go by car, right? Or maybe I'm sliding this way, right? I'm touching each and every part of the road. Means I'm not skipping a single point. Then that is known as continuous. Random means sum. Continuous means all. For example, if I go for 1 plus 2 plus 3 plus 4, my answer is 10. आप लोगों ने by any chance ये formula सुना हुआ है? 1 plus 2 plus dot 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 plus n is n into n plus 1 upon 2. ये सुना है बेटा? Arithmetic progression. आपको पहले 5 नंबर ऐड करने हैं. 5 नेचुरल नंबर. It will be 5 into 5 plus 1 upon 2.
That means 5 6 are 30 upon 2. Your answer will be 15. करके देखो. आपको फर्स्ट 100 नंबर्स ऐड करना है. फर्स्ट 100 नंबर. तो कोई 1 to 100 लिखते नहीं बैठेगा. It is 100 into 101 upon 2. Your last number is 100. And the number after that is 101. So this will be 50. Yes or no? 1015 505. So the final answer is 5050. So this is adding 10 natural numbers, 15 natural numbers, 100 natural numbers, 1000 natural numbers, right? But between 1 and 2 you are not taking the numbers. Between 2 and 3 you are not taking the numbers. It's like 1.15 is not included. 2.34 is not included. But when I tell you that this is the number line, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, right? Point P is indicating 1 and point Q is indicating 4. Then what is distance between points P and Q? 3. So now if I say draw a segment of size 3, draw a segment of size 3, that means between 1 and 2, whoever comes you are taking. 1.15, 1.9729, 2.134576. मैं कुछ भी random number बोल रहा हूँ, but I am taking care that my numbers are between 1 and 4, including 1 and 4, including 1 and 4. Right? That means you are drawing a segment by taking each and every value which comes in between. Each and every value which comes in between. That is the meaning of continuous. Means all. Random means some of them. And continue means all of them. That is the meaning of it. Let me give you another beautiful simple life example. You are celebrating your birthday, which is one particular day of the year. Suppose your birthday is on 15th of August. That means you are celebrating 15th August every year as your birth date. That is called random. Out of all one day in a year and years over the years. Yes or no? Suppose you are 16 by now or you are about to complete 16 years. That means by now you must have celebrated 15 birthdays. By now. Yes or no? But what about your growth process? What about your aging? Is it a continuous thing? I am talking to you right now and suppose this sentence is taking me 15 seconds to complete. That means your age is increased by 15 seconds. My age also is increased by 15 seconds. Do you agree with me? Yes or no? See, I was silent for this 15 seconds, but your age increased by 15 seconds and my age also increased by 15 seconds. So whether I speak or no, right? Each and every event of your life, whatever you do, you are sleeping, you are reading, you are studying, you are jo bhi. But can I see you are aging continuously? Are you getting my point? So it is a continuous phenomenon. Growth of your nails is a continuous phenomenon. ऐसा नहीं कि overnight 1 millimeter बढ़ जाता है. It must be increasing in the range of nanometers, picometers, which is impossible for human eye to understand. Right? Growth of your hair, it's a continuous process. Right? होना चाहिए उसके लिए बार बार के बाद होना चाहिए. That's a different thing. But can you see it is a continuous thing? ऐसा नहीं होता कि अचानक 1 millimeter बढ़ गया तो 1 centimeter बढ़ गया. Right? It's a continuous phenomenon. So this is basic way of understanding integration. Right? अब integration के बिल्कुल बाजू में मैंने क्या लिखा है? Anti differentiation. मतलब इधर आप जो करते हो इधर इसका आंसर उल्टा आता है. तो ये मैं बाजू में लिख रहा हूँ. मतलब when I give you time to write this, right? You should write this बाजू में. So it is easy for you to compare. वहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले नहीं लिखे जो लास्ट टाइम दिए थे, वो सारे नहीं लिखे. मैंने सिर्फ कुछ लिखे. Because integration में we need some formula to understand physics part of it. Integration में क्या करते हैं? If it is integration of x raised to n dx, if it is integration of x raised to n dx, this should be written as x raised to n plus 1 upon n plus 1. x raised to n plus 1 upon n plus 1. अभी ध्यान से सुनो दोनों में फर्क क्या है. Power becomes coefficient and the new power is reduced in by 1. So first you are thinking about the multiplier or the coefficient, and then you are thinking about the power. Over you have to think about the power first, and then the new power increases by 1. There the new power was reducing by 1. Here the new power is increasing by 1. There the original power was the multiplier. Here the new power is the divisor. फर्क समझा? I repeat. Derivative of x raised to n is nx raised to n minus 1.
power becomes coefficient, step number 1. New power decreases by 1, right? What is the sequence? What is the sequence? Power becomes coefficient or multiplier. Power becomes coefficient, and then new power reduces by 1. New power reduces by 1. ये समझा सबको? अभी इसके बिल्कुल साथ साथ में ये स्टडी करने का, बिकॉज दे गो हैंड टू हैंड. इसके बिल्कुल बाद भी ये स्टडी करने का. एंड व्हाट इज इट? न्यू पावर increases by 1, and then becomes divisor also. Sequence समझा बेटा? राइट? उसके एग्जांपल्स क्या दिए थे मैंने? डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n का एग्जांपल क्या दिया था मैंने? फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, is it 3x square? Right? If I write derivative of 2x raised to 5, is it 2 out? Derivative of x raised to 5, that means it is 2 out. Derivative of x raised to 5 is 5x raised to 4. Yes or no? समझा अच्छे से? We do this. अभी इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल, सोच के बोलना बेटा. फॉर एग्जाम्पल, सोच के बोलो. What is integration of x raised to 5 dx? X raised to 6 upon 6. What is integration of? This is first example. What is integration of, for example, 2x raised to half dx? 2 बाहर आया, x raised to half का इंटीग्रेशन क्या होगा? x raised to half plus 1 upon half plus 1. Am I right? So this is 2 x raised to 3 by 2 upon 3 by 2. Am I right? तो ये 3 by 2 ऊपर गया. It becomes 2 by 3. That means my final answer is 2 by 3 x raised to 3 by 2. यहाँ तक समझा? एकदम बेसिक फॉर्मूला. What is integration of x raised to n? What is integration of x raised to n? Is it nx raised to n minus x raised to n plus 1 upon n plus 1? मैंने इंटीग्रेशन पूछा. Integration of x raised to n is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Right? Now, how this comes? Let us try to understand. Listen to this very carefully. Because अभी जो मैं लिख रहा हूँ ना, वो बुक में नहीं देते. बुक में आपको डायरेक्ट फॉर्मेट दिखता है. बुक में आपको डायरेक्ट फॉर्मेट दिखता है. What is derivative of x raised to n? Is it nx raised to n minus 1? इसका मतलब what is derivative of x क्यूब? मैं रिपीट कर रहा हूँ एग्जाम्पल. Is it 3x square? अभी डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन पे कैसे जाते हैं? ध्यान से सुनो. डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन पे कैसे जाते हैं? You should shift dx on the other side. You should shift dx on the other side. तो ये dx, thank you so much, इधर लेके गया है. So it is d of x cube is 3x square dx. लेकिन आप लोगों को लास्ट टाइम याद हो तो मैंने एकदम बोला था क्लियरली कि दिस d by dx is a function. ऐसे आप dd कट भी नहीं कर सकते और d इधर dx उधर, या तो dx इधर d उधर, वैसा भी नहीं कर सकते. That means after shifting this dx on that side, you should shift this d also on that side. And shifting d on the other side becomes anti-d. Anti-d मतलब anti-differentiation. Anti-differentiation. Anti-differentiation मतलब इंटीग्रेशन. उल्टा मतलब ये d यहां से गया, यहां पे आया. यहां तक समझा? ये d यहां से गया इसलिए यहां पे आया. सो डिफरेंशिएशन बिकम्स इंटीग्रेशन. अब इसको सॉल्व करके देखते हैं. मैं लेफ्ट हैंड साइड को टच नहीं कर रहा हूं. मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x क्यूब. राइट हैंड साइड में 3 बाहर आएगा, बाकी बचा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx. मतलब 3 बाहर आया. इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx इज x रेज़ टू 2 plus 1 अपॉन 2 plus 1. राइट? ये 3 और ये 3 कट हुआ, x रेज़ टू 3.
आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड? लॉजिक समझा कि वापिस बोलो, वापिस बोलो. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब? 3x स्क्वायर. ये समझा? ये dx में वो साइड पे लेके गया. सो व्हाट इज d ऑफ x क्यूब? 3x स्क्वायर dx. ये समझा? अभी डिफरेंशिएशन को वो साइड पे लेके गया. इट बिकम्स इंटीग्रेशन. ये समझा? अभी मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं कि ये दोनों मैच हो रहे कि नहीं. सो दिस इज 3 बाहर. व्हाट इज इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx? इज इट 3 बाहर? x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन इज x to 2 plus 1 upon 2 plus 1 as per this formula. Yes or no? तो ये 3 और ये 3 कट हुआ. मतलब उल्टा बोलने का, मतलब उल्टा बोलेगा. फॉर एग्जाम्पल, if I say derivative of sin x is cos x, if I say derivative of sin x is cos x, then how will I write this? How will I write this? If derivative of sin x is cos x, use the same rule. Come on, ये dx उधर गया, so this becomes cos x dx. This is becomes d of sin x. ये अलाउड नहीं है, तो d यहां से गया, वहां पे गया, मतलब ये इंटीग्रेशन हुआ. तो बोलने का कैसे? इफ डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x, then integration of cos x dx is sin x. समझा कि वापिस बोलो? चलो आप लोग बोलो. इफ डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x, what is integration of cos x? If derivative of cos x is minus sin x, formula number 3, then what is integration of sin x? Minus cos x. If derivative of sin x is cos x, then integration of cos x. ये cos x अकेला नहीं होना चाहिए, इसके साथ में dx होना ही चाहिए. इंटीग्रेशन में कभी भी इधर dx, dt, dy, d theta ऐसा कोई होना ही चाहिए. Otherwise the question is meaningless. If I ask you what is derivative of sin x, ये मैंने ऐसे पूछा, is it not meaningless question? Because you should ask me, sir, with respect to what? Is it d by dx? Is it d by dy? Is it d by dt? तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, d by dx. मतलब इसका यहाँ पे होना कंपलसरी था, तो इसका यहाँ पे भी होना कंपलसरी. If you say, sir, integration of cos x is sin x, I will straight away give you 0. Because मेरा question ये होगा, with respect to what? तो obviously dx. Right? Now this dx is called differential element. क्या बोलते हैं इसको? Differential element. That means that element which keeps changing. That particular symbol which keeps changing. अगर मैं आपको in general dx पूछूं कि what is dx, तो आप उसको wordings में कैसे बोलोगे? What is dx? Change in x. ये मैं x is equal to 0 पे खड़ा हूं, ये x is equal to half है, ये x is equal to 1 है, ये x is equal to 1.5 है. तो इस x वेरिएबल, राइट? तो dx का मतलब क्या होता है? चेंज इन x. dx का मतलब होता है डिफरेंशियल एलिमेंट, एंड उसका मतलब होता है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट ऑफ x. क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट ऑफ x. इन्फिनिटेसिमली मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल. द वर्ड इनफाइनाइट मीन्स एक्सट्रीम. इनफाइनाइटली लार्ज मतलब एक्सट्रीमली लार्ज. इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल. मतलब अगर मैं कोई टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं मेरी वॉच की हेल्प से, then the minimum time which I can record is 1 second. But if I use stopwatch of my mobile phone, I can measure 1/10 of a second also, 1/100th of a second also. If I think about the clocks which are used in Olympic Games, then they go up to 1000th. Reason, मैं ये और ये हम लोग रेस में भाग रहे हैं, 100 मीटर रेस में.
अभी सपोज मुझे भी 12 सेकंड लगा, इसको भी 12 सेकंड लगा, इसको भी 12 सेकंड लगा, राइट? तो नेचुरली एक ही जन को गोल्ड मेडल मिलेगा, तीनों जन को तो गोल्ड मेडल नहीं मिल सकता। अब ये 12 सेकंड क्यों लगा? लिमिटेशन ऑफ दिस, 12 के बाद इसमें डायरेक्ट 13 सेकंड दिखेगा, तो मालूम नहीं पड़ेगा कि इनका टाइमिंग्स 12 और 13 सेकंड के बीच में कितना है। तो नाउ व्हेन यू गो फॉर अ क्लॉक व्हिच इज करेक्ट अप टू मिलीसेकंड, दैट इज 1,000th ऑफ अ सेकंड, तो अभी मेरे क्लॉक में दिख क्या आएगा, मेरे लिए रेफरी को दिख क्या आएगा, 9 पॉइंट कितना टाइम बोला मैंने, 12, हाँ, तो मेरे में दिखा 12.637, इसमें दिखा 12.437 और इसमें दिखा 12.173। तो अभी 12 और 13 के बीच का भी एक्यूरेट नंबर आया ना, ऐसा भी हो सकता है 12.37, 12.37, 12.37, 12.379, 12.374, 12.371, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। आप ओलंपिक में 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, स्विमिंग, उनके रिकॉर्ड्स देखना, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज के बीच में हार्डली 0.01, 0.001 सेकंड, सिर्फ इतना फर्क होता है, which is impossible for the human brain to understand with naked eye, because इतना क्लोज होता है। अभी जैसे क्रिकेट की गेम में भी DRS लेते ही ऐसा ना, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता यार, बॉल इतना क्लोज जाता है ना बैट के कि पता नहीं चलता कि बैट को बॉल टच हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? तो दे विल सी एंड दैट स्पाइक कम्स DRS में, तो पता चलता है कि नहीं बैट कट लग के गया था, मतलब आउट था, यस। और अगर एम्पायर का डिसीजन का राइट था और बॉलर्स का डिसीजन रॉन्ग था तो बोलेगे योर डिसीजन इज रूल्ड आउट, आई स्टैंड बाय माय डिसीजन, राइट? और अगर वहां से थर्ड एम्पायर देख के बोलता है कि नहीं एम्पायर आपका डिसीजन रॉन्ग था, राइट? द एम्पायर विल से सॉरी, आउट, यस और नो? दैट मींस दोस पर्टिकुलर डिसीजंस हैव टू बी एक्यूरेट, otherwise the result may change. If you see old time matches of India with some other countries, Sachin Tendulkar is given out wrong way maximum times. एकदम बैट से दूर गया होगा ना इतना, तो भी खाली बॉलर ने अपील कर दिया ना, तो एम्पायर आउट दे देगा, बिकॉज दे न्यू कि सचिन तेंदुलकर विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। इट वाज लाइक अ बायस्ड डिसीजन। एक वेस्ट इंडियन एम्पायर था, कभी भी देखना उनकी वीडियोस देखना, सचिन तेंदुलकर को मैक्सिमम टाइम उतना आउट दिया। सचिन तेंदुलकर 90 और 100 के बीच में बहुत बार आउट हुए हैं, हालांकि उसमें से आधा टाइम वो आउट नहीं थे, बट रॉन्ग डिसीजन। सो दैट रूल ऑफ थर्ड एम्पायर के पी आर, वो तो पूरा ये दो एम्पायर पूरा डिसीजन डिसाइड कर लेते हैं। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उनसे भी ह्यूमन एरर्स हो सकता है, जानबूझ के भी कर सकते हैं। अभी एम्पायर के ऊपर भी वॉच होता है, एम्पायर एक मैच में 2 या 3 रॉन्ग डिसीजन दे देगा ना, मतलब वो एम्पायरिंग बराबर नहीं कर रहा है, नेक्स्ट मैच में उसको चांस ही नहीं देगा कि बाबा आपका ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है, जाओ, क्योंकि आपकी वजह से मैच का रिजल्ट बदल सकता है। आर यू गेटिंग दिस? सो सपोज आई एम टेकिंग द रीडिंग ऑफ x, I am taking the reading of x because dx is very small element in x, and I am saying dx is 0.001, change in value of x is 0.001. He is saying 0.0001. His result is better than mine. He is saying 0.00001. His results are better than us. She is saying 0.000001. 1 micro 10⁻⁻⁶. Her result is the best. मतलब आप जितना smallest reading बोल सकते हो, you are more accurate. Are you getting this? अब जैसे आपका RBC count, WBC count आता है, तो उसमें they will write the range कि आपका RBC नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में इफ यू आर मेल जेंडर इतने से इतने बीच में होना चाहिए, फीमेल है तो इतने से इतना होना चाहिए, आपका बॉडी वेट इतना होना चाहिए, अगर आपका हाइट इतना है तो ये एज है, तो एज और हाइट के नॉर्मली वो लोग उतना वेट बोलते हैं, अदरवाइज दे विल सी यू आर ओबीस, यू आर ओवर ओबीस, यू हैव अ थ्रेट ऑफ डायबिटीज, यू हैव अ थ्रेट ऑफ कार्डियक अरेस्ट एंड सो ऑन. सो दैट दोस रीडिंग्स आर वेरी एक्यूरेट अप टू हाई प्रिसिशन. मैं छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ जो बुक्स में नहीं होगी. बुक में बेटा आपको ये रिजल्ट के बाद डायरेक्ट ये रिजल्ट दिखेगा, राइट? तो यहाँ पे dx का होना जरूरी है, अदरवाइज योर क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, राइट? What is integration? It is opposite of differentiation, right? So they will not write the word anti-differentiation. मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को इंटीग्रेशन वर्ड समझ में आए, राइट? डेरिवेटिव में क्या करते हैं? पावर बिकम्स कोएफिशिएंट एंड देन द न्यू पावर रिड्यूसेस बाय 1. इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? न्यू पावर इंक्रीजेस बाय 1 and becomes a denominator.
and becomes denominator. यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, एंड कुछ भी हो सकता है, एंड कुछ भी हो सकता है, -1 नहीं होना चाहिए. सोचो. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड कुछ भी हो सकता है लेकिन -1 नहीं हो सकता है. अच्छा, वर्स्ट कम वर्स्ट -1 हो गया तो क्या? इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा था. डिड आई राइट डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x. इसको बेटा मुझे उल्टा लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? d of log x is 1/x dx. लेकिन ऐसा लिखना अलाउड नहीं है. मतलब ये स्टेप मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए स्प्लिट करके दिया. ये स्टेप मैं नहीं लिख सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए था? d को शिफ्ट करके वो साइड पे लेके जाना चाहिए था. क्या हो? d को शिफ्ट करके वो साइड पे लेके जाना चाहिए. तो मेरा फाइनल आंसर क्या हुआ बेटा? log x is equal to इंटीग्रेशन 1/x dx. अब 1/x को आप ध्यान से देखोगे ना, तो इज इट x raised to -1 dx? यस और नो? इसका मतलब n-1 नहीं हो सकता था. x raised to -1 dx नहीं होना चाहिए था. अगर है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता है. तो फिर कौन सा फॉर्मूला? log x. दिस इज द ओनली एक्सेप्शन. n कुछ भी हो सकता है, -1 नहीं होना चाहिए. आई रिपीट, n कुछ भी हो सकता है, -1 नहीं हो सकता है. अगर -1 हुआ तो फिर ये फॉर्मूला फ्लॉप जाता है, बिकॉज दिस विल बी -1 + 1. Then the formula is log x. Integration of 1/x dx is log x. 1/x means x raised to -1. यहां तक सब कुछ समझा? ये मैंने एक मात्र फॉर्मूला का कंपैरिजन लिखा इधर. मतलब ये पूरा बंदा एक साइड पे, और उसकी कंपैरिजन प्लीज. ये पूरा बंदा एक साइड पे और उसकी कंपैरिजन ये मैंने यहां तक लिखी है, ताकि आपको समझ में आए. राइट? और आप लोग जो स्टाइल में मैं मार्किंग कर रहा हूं ना, प्लीज वही स्टाइल में करना. दिस एंटायर बैच इज बायोलॉजी बैच. अभी जो मैं कर रहा हूं ना, ये थोड़ा मैथ्स का फाउंडेशन. राइट? मैथ्स के फाउंडेशन में ये कब शुरू होगा मैं वेट नहीं कर सकता उसके लिए, बिकॉज नहीं तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन रिलेटेड सारे क्वेश्चंस फिजिक्स में फिर हमको होल्ड पे रखने पड़ेंगे. वी कैन नॉट कीप देम ऑन होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज अवर चैप्टर्स इज कंटिन्यू. फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड. अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सब 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज होल्ड पे रखा, तो उसके रिलेटेड एक्सटर्नल बुक्स में भी 20-25 क्वेश्चन होल्ड पे रहेंगे. वी कांट डू दैट. फर्स्ट फॉर्मूला समझा बेटा? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x raised to n and x raised to n -1. तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n? x raised to n + 1/n + 1. Now listen to this very very carefully, because still it is not over. सोच के आंसर देना बेटा, सोच के. What is derivative of x²? इतना क्या टाइम लग रहा है? इतना सिंपल फॉर्मूला पूछा. 2x. राइट? What is derivative of 5? 0. राइट? 0. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0. तो अभी मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x² + 5? वेरी गुड, परफेक्ट. Because it should be derivative of first and derivative of second. Very good beta, perfect. Should it be 2x + 0? मतलब 2x. Convinced? What is derivative of x² - 17? 2x - 0. इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव. So is it 2x? What is derivative of x² + c, where c is constant? 2x. Brilliant, very good. बराबर. अभी मुझे इसको उल्टा लिखना है. मैंने चारों डेरिवेटिव लिखे ना. If derivative of x² is 2x, can I say integration of 2x dx should be x²? ये पहला वाला सेट हो गया. इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है. इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है. राइट? अभी नेक्स्ट वाला कैसे लिखूंगा सोचो. Therefore integration of 2x dx is x² + 5. Therefore integration of 2x is x² - 17. Therefore integration of 2x is x² + c.
सी द मैजिक, मेरा क्वेश्चन सेम है लेकिन मेरे आंसर्स अलग अलग है। तो ऐसे कितने आंसर्स पॉसिबल है? ब्रिलियंट। मतलब जब भी आप इंटीग्रेशन लिखते हो आपको सपोर्ट में प्लस सी लिखना चाहिए, आपको सपोर्ट में प्लस सी लिखना चाहिए, इधर प्लस सी लिखना चाहिए, इधर प्लस सी लिखना चाहिए। ये सब जगह पे सी का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज दिस? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड व्हाट इज दिस सी? इट मे बी एनी वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव और फ्रैक्शन और रूट, बट इट शुड बी अ कांस्टेंट। रूट 3 चलेगा, पाई चलेगा बिकॉज पाई इज 22/7, एनी कांस्टेंट नंबर। -10 चलेगा, राइट? -7 का 4th रूट चलेगा, कुछ भी चलेगा। इज दैट क्लियर? यू माइट बी थिंकिंग कि सर आपने इधर प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने सी के बारे में क्या बोला? इट इज सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एनीथिंग ऑन अ नंबर लाइन, एनीथिंग ऑन अ नंबर लाइन, एनी रियल नंबर। इज दैट क्लियर? सी क्यों लिखते हैं समझा ना? मतलब सोचो छोटी छोटी बातें आ रही है। आपको बुक में क्या दिखेगा मालूम है? डेरिवेटिव ऑफ दिस इज दिस, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज दिस। कहां से आया कुछ नहीं बोलेंगे। तो व्हाट वाज द रूल? dx शिफ्ट होना चाहिए, dx दूसरे साइड पे शिफ्ट होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx? चेंज इन x, राइट? व्हाट इज द फर्दर मीनिंग ऑफ दैट? Infinitesimally small element of x. What is the meaning of the word infinitesimally small? As small as you can think of. अगर आप 0.001 बोलते हो और कोई आपसे कम वाला आंसर दे देता है, that answer is more acceptable. Yes or no? That means integration is impossible without dx. अभी मुझे सेकंड फॉर्मूला का काउंटर पार्ट दो। ये फर्स्ट फॉर्मूला था, therefore ये फर्स्ट फॉर्मूला था। अब ये सेकंड फॉर्मूला है, तो इधर मुझे सेकंड फॉर्मूला दो। Therefore, proud of you, come on. Integration of cos x dx is equal to sin x plus c. Very good. थर्ड का काउंटर पार्ट दो, थर्ड जाने दो। थर्ड हम लोग इधर लिख ही नहीं रहे हैं, इसको मैं थोड़ा कट शॉर्ट कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा कट शॉर्ट कर देता हूँ। थर्ड वाले में ये लिखता हूँ, चलो। डेरिवेटिव ऑफ cos x is sin माइनस sin x, माइनस sin x। तो बोलो क्या बोलोगे बेटा? Therefore, integration of sin x is minus cos x plus c. और चौथा और आखिरी, derivative of x was 1. बराबर ना? बोलो। Therefore, integration of 1 dx is x plus c. इधर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt होता तो, इधर इंटीग्रेशन ऑफ dy होता तो, इधर इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा होता तो। यस और नो? इसका एक्चुअल लाइफ में मीनिंग क्या होता है मालूम है? इंटीग्रेशन 1 dx मींस इंटीग्रेशन ऑफ dx, राइट? इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू ऐड, dx का मतलब होता है वेरी स्मॉल। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0 टू इंफिनिटी, राइट? या तो 0 टू 10 ले लेता हूँ, चलो ना। तो 0 से 10 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, जितने पॉसिबल नंबर आते हैं, सब लोग सीरीज 0, 0.00001, 0.000 something. That means you're starting from 0, you are drawing a segment of 10. If you are talking about displacement, you are starting from 0 and you are going to up to time 10 seconds. अगर आपने इधर t लिखा, आपने इधर t लिखा, अगर आपने इधर v लिखा, dv, तो ये आंसर आएगा v. That means you are starting from 0 meters per second and your car का speed is 10 meters per second now. Are you getting this? एकदम फनी लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलते हैं, मतलब एकदम जिसको बोलते हैं एकदम बेसिक लेवल पे समझाना है। तो इंटीग्रेशन dx चिंटू प्लस चिंटू प्लस चिंटू प्लस चिंटू प्लस ब्ला 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 इज मिंटू। आप अभी 10th स्टैंडर्ड में से पास होके 11th में आए, ऐसा तो नहीं है ना कि मम्मा ने स्कूल में डाला जब आप 5 साल के थे और डायरेक्ट आपने 10th पास किया, फर्स्ट स्टैंडर्ड पास किया, सेकंड स्टैंडर्ड पास किया, थर्ड स्टैंडर्ड पास किया। उसमें भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने यूनिट टेस्ट दिया, टर्मिनल दिया, सेकंड यूनिट टेस्ट दिया, फाइनल दिया। उसमें भी आप रोज स्कूल में जाते थे, इट वाज एवरीडे स्टडी। ऐसा तो नहीं था वीक में एक बार जाते थे, महीने में एक बार जाते थे, नो।
That means it is a compilation of all the things which you have done. Is that clear? That is the meaning of it. What is integration dx? बोलो बेटा. X plus c. What is integration dy? Y plus c. अब c कब लिखने का? C कब लिखने का? When you don't know इधर क्या लिखा है and when you don't know इधर क्या लिखा है. That means when I put question mark here and question mark here, then this type of integration is called indefinite इंटीग्रल. इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब मैं कहां से शुरू कर रहा हूं और कहां पे जाने वाला हूं ये मुझे पता नहीं है. अभी डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है ये ध्यान से सुनो. डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है ये ध्यान से सुनो. सपोज आई गिव यू इंटीग्रेशन x क्यूब dx, तो आपका आंसर आया x रेज़ टू 4 अपॉन 4. आपने इधर प्लस c लिखा बराबर. अभी मैं लिखता हूं व्हाट इज इंटीग्रेशन x क्यूब dx वेयर x इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 1 to 4. x का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा था 4 तक जा रहा है. तो ये 1 को बोलते हैं लोअर लिमिट. क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट. 4 को बोलते हैं अपर लिमिट. अपर लिमिट. अब सॉल्यूशन क्या लिख रहा हूं ध्यान से सुनो. माय आंसर इज स्टिल x रेज़ टू 4 अपॉन 4 प्लस c लिखा मैंने और अभी मैं कट कर रहा हूं टू इंडिकेट कि बेटा अभी आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता है. ऊपर वाला था इनडेफिनेट इंटीग्रल. इनडेफिनेट. आपका स्टार्ट क्या है आपका एंड क्या होने वाला है आपको नहीं पता है, राइट? लेकिन नेक्स्ट वाला जो मैंने लिखा दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल. आपका स्टार्ट क्या है और आपका एंड क्या है आपको पता है. हु इज योर स्टार्ट 1 एंड हु इज योर एंड. तो अभी क्या लिखने का ध्यान से सुनो. ये मैंने c लिखा कट किया. देन व्हाट शुड आई डू? आई शुड राइट x इज इक्वल टू 1 लोअर साइड, x इज इक्वल टू 4 अपर साइड. 1 इज अ लोअर लिमिट, 4 इज अ अपर लिमिट. अभी ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं. जिधर x उधर 4, उसके बाद में माइनस साइन. जिधर x उधर 1. That means it should be 4 raised to 4 upon 4 minus 1 raised to 4 upon 4. You know इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल मतलब है. ये मैंने आपको नंबर लाइन दिया, ये दिया 0 1 2 3 4. 1 को मैंने पॉइंट P बोला और 4 को मैंने पॉइंट Q बोला. और अभी मैंने आपको पूछा व्हाट इज डिस्टेंस PQ. व्हाट इज डिस्टेंस PQ? 3. Very good. How did you do that? 4 minus 1. What does that mean? Higher coordinate minus lower coordinate. तो इधर हायर कौन है? ऊपर वाला. लोअर कौन है? राइट. आपने क्या बोला? हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट. इज इट हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट? जिधर x उधर 4, जिधर x उधर 1, बीच में माइनस साइन. इज इट लाइक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर. तो बेटा आपका आंसर क्या है? 64 माइनस 1 अपॉन 4 है ना. दैट मीन्स 63 अपॉन 4. मतलब अभी आप श्योर हो कि मेरा आंसर 63 अपॉन 4 आया. इधर आप श्योर नहीं थे बिकॉज क्या लिखा मैंने? आई एम सो सॉरी, मैंने 2 गलत लिखा है. आई एम सो सॉरी. 256. थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी. दिस इज 255 अपॉन 4. आर यू गेटिंग दिस? इधर आप लोग श्योर नहीं थे because c was some constant of integration. It could be 0, it could be 5, it could be minus 17, it could be anything. But here you are sure. पूरा सीक्वेंसिंग समझ में आ रहा है आपको. सिर्फ इतना इंटीग्रेशन भी समझ में आ गया ना तो फिजिक्स के लिए इनफ है. कौन सा? एक पावर वाला, एक साइन एक्स वाला, एक कॉस एक्स वाला और एक 1dx वाला. Yes or no? One by one, without looking at the board, honestly. Derivative of x raised to n. N minus 1. Integration of x raised to n. Plus c. क्योंकि आपको लिमिट्स मालूम है, बराबर. Derivative of sin x. Integration of sin x. Derivative of cos x.
Integration of cos x. Very good. Derivative of x with respect to x. Integration of 1 with respect to x. Integration 1 dt. Integration 1 d theta. C कब आएगा? C कब आएगा? Indefinite integral. C कब नहीं आएगा? Best example in practical life. इससे ज़्यादा simple कुछ नहीं हो सकता है. आप लोग ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे आते हो क्लास में, मतलब मंडे और फ्राइडे आपका फ्री डे है. अभी मैं थर्सडे आके इधर अनाउंस करता हूँ कि फ्राइडे में एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहा हूँ. ऐसा मैंने अनाउंस किया. आप लोगों का क्वेश्चन क्या होगा? ओके सर, व्हाट टाइम? मैं बोलूँगा मालूम नहीं है. आप लोग वापिस पूछोगे कि सर हमको मालूम तो होना चाहिए ना कितने बजे आना है. सर व्हाट टाइम? मैं अभी थोड़ा अनोइंग टोन में होता हूँ. बोल दिया ना मालूम नहीं है तो ना वी विल नॉट आस्क मी, बट यू नो टुमारो एक्स्ट्रा लेक्चर है. तो व्हाट इज योर नॉर्मल माइंडसेट कि हम लोग रोज 7 बजे आते हैं और सर का भी लेक्चर 7 बजे ही होता है, तो शायद 7 बजे आना होगा, राइट? अब आप फ्राइडे को 7 बजे आए सुबह, मैं आया ही, मैं 8:30 बजे आया, 8:30. अंदर से तो तुम लोग भर भर की गालियां दे रहे हो मुझे कि 2 बार सर को टाइम पूछा, सर ने टाइम तो बताया नहीं. अभी हम लोग 7 बजे आए, 1.5 घंटे से वेट कर, सर आया ही नहीं. बट आई एम नॉट एट फॉल्ट बिकॉज आई डिड नॉट कमिट व्हाट टाइम आई विल कम. Yes or no? Now I am coming at 8:30. I will start my lecture at 8:30 and I will finish it at 8:35. भर भर की गालियां दोगे मुझे. इंडियन कल्चर शायद अवॉइड करेगा कि मुझे मुंह पे बोलो कि सर यू आर वेरी खड़ूस एंड बैड. You wanted to take lecture for 5 minutes and you know made us wake up early in the morning. You came all the way from Borivali, Bandra, Virar, कहाँ से आए हम लोग और आपने 5 मिनट का लेक्चर लिया. But still you can't blame me. मैंने बोला था did I come in? So that is indefinite. Are you getting this? मतलब ये खाली सर्टन हुआ. लेकिन आपने पूछा कि सर ओके फ्राइडे एक्स्ट्रा लेक्चर कितने बजे सर? I will say 7:30 to 9:30. Means now you know कि चलो 7 o'clock नहीं आना है, आधा घंटा लेट. Are you getting my point? Means I am defining the time. I will start at 7:30 and I will go up to 9:30. Yes or no? तो बेटा indefinite integral में C यूज करने का, डेफिनेट इंटीग्रल में C यूज नहीं करने का. तो डेफिनेट इंटीग्रल में जब C यूज नहीं करने का तो फिर क्या करने का? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट माइनस. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? श्योर? मुझे बेटा ये रिकॉर्डिंग एकदम नॉन स्टॉप करना है, तो माई रिक्वेस्ट इज आफ्टर आई फिनिश एवरीथिंग विल यू कॉपी ऑल दिस, राइट? ये कहाँ पे कॉपी करना है मैं आपको बोलता हूँ. या तो आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो और एल्स टुडे I am giving you temporary notes of the chapter work, power, energy and collisions, and this is lecture number 1, right? जिसका मैं आपको temporary note दूंगा because the book is under printing. Maybe in weeks time the book will come, right? So whatever I make you write extra in that literature, right? Write it very very systematically. Please let me know this complete part well understood. Complete part including this, because if derivative of log x is 1 upon x, what is integration of 1 upon x? Please tell me. बोर्ड पे जितना भी लिखा हुआ है ये समझा आपको? श्योर? सीक्वेंसिंग बराबर लिखना प्लीज. ये 1 का रेफरेंस ये 1 था, ये 2 का रेफरेंस ये 2 था, ये 3 का रेफरेंस ये 3 था, ये 4 का रेफरेंस ये 4 था. ये इंटीग्रेशन बेसिक 4 फॉर्मूले ओवर. आर दे इनडेफिनेट इंटीग्रल? यहाँ पे बेटा मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है. क्वेश्चन मार्क लिखा है मतलब आपने क्वेश्चन मार्क करना है और बाद में बोलना है कि दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल. ओके, इनडेफिनेट इंटीग्रल दिस वन. व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल. व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल? यू नो द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. यस और नो? व्हाट इज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट? स्टार्ट टू एंड. अच्छा, कैन अवर आंसर बी नेगेटिव? हो सकता है. हो सकता है कि x का वैल्यू 4 है और ये वैल्यू 1 है. हो सकता है ये ड्राइविंग ऑफ द कार का प्रॉब्लम है एंड यू आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटीज. इधर x मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये x कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है. इट मे बी वेलोसिटी, इट मे बी एक्सेलरेशन, इट मे बी फोर्स, इट मे बी मोमेंटम, इट मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी हो सकता है. इज दैट वेरी क्लियर? सुपर श्योर? सो सपोज ये 4 है और ये 1 है तो बेटा मेरे यहाँ आंसर आएगा -255/4. हो सकता है दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ माय कार एंड आई वाज अप्लाइंग ब्रेक्स, सो इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन.
my final velocity was less than initial velocity. So this answer can be negative also. Another very very important thing, एकदम ध्यान से सुनो बेटा. What is integration? What is integration? Cos theta d theta. What is it? Is it sin theta plus c? लेकिन मैंने अगर आपको थीटा का वैल्यू दिया 90 डिग्री टू 270 डिग्री, so the rule says that upper limit and lower limit cannot be the same. Apply common sense. I am saying that I will start the lecture at 7:30 a.m. tomorrow and I will finish the lecture at 7:30 a.m. tomorrow. Senseless it is. Yes or no? If I say 7:30 and 7:31, that also makes sense. I am taking the lecture for 1 minute. I am starting the lecture at 7:30 and I am finishing the lecture at 7:30. Not possible. लेकिन फाइनल आंसर 0 हो सकता है. चेक करो ये क्या है. अभी मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखा, तो बेटा इधर आप 270 लिखोगे और इधर आप 90 लिखोगे. यस और नो. तो ये मेरा आंसर आया sin 270 which is -1 and sin 90 is this, राइट. लेकिन अगर बेटा ये sin थीटा d थीटा का इंटीग्रल होता तो ये माइनस cos थीटा होता. यस और नो. दैट मींस इट इज माइनस साइन बाहर. दिस इज cos of 270 minus cos of 90. So this is minus cos of 270 is 0 and cos of 90 also is 0. तो मेरे लिमिट्स सेम नहीं हो सकते, लेकिन मेरा फाइनल आंसर सेम हो सकता है. मेरा फाइनल आंसर सेम हो सकता है. अब जैसे मान लो कोई तो एक इंटीग्रेशन सॉल्व करके मेरा आंसर आया x is to 4/4 और मैं लिमिट्स दे रहा हूं -2 to +2, -2 to +2. तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2⁴/4 माइनस -2⁴/4. चेक करो बेटा, आंसर 0 आया क्योंकि ये भी 16 है, ये भी 16 ही है. तो माय आंसर इज 4 - 2. इज दैट क्लियर? दैट मींस अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट शुड नॉट बी द सेम. स्टार्ट एंड एंड विल नॉट बी द सेम. बट योर फाइनल आंसर मे बी 0. इट इज समथिंग लाइक ये कोई डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है और आप घूम के उधर ही वापस आए, तो योर डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 but distance covered by you is not 0. Is that very 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 clear? अभी तक मैंने बोर्ड पे जो लिखा सब समझा? Yes everyone? Okay. इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब समझा? Okay. Now आत्मा वर्क पावर एनर्जी का नोट्स. We are going to split this chapter in 4 parts: work, power, energy, and collisions. First part, second part, third part, and fourth part. About work, I don't need to talk much about it because scalars, vectors में हम लोग work के बारे में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं. कि suppose first vector. Suppose this is the body which is kept on a horizontal surface. And this is the center of mass of the body. This is the line along which center of mass will move along pulling it, right? और मैंने यहाँ पे थ्रेड बांध के रखा हुआ है, यहाँ पे थ्रेड बांध के रखा हुआ है, and I am pulling it in this direction. That means force applied is in this direction, right? लेकिन उसकी वजह से ये ब्लॉक तो इधर ही आएगा, right? And suppose the block comes here. Suppose the block comes here. Right? That means displacement is distance between these two on right side. Yes or no? Yeah. This is the angle between force vector and displacement vector. So what was work done? Work done was force dot displacement. Your school level knowledge was force into displacement. Your college level knowledge is force into displacement into cos of the angle between the two. Yes or no? That means your official answer is Fs cos theta. Did we say that work done may be positive, work done may be 0, and work done may be negative? Do you agree with me? Yes. When is work done positive? When theta is acute angle. When work done is negative? When theta is obtuse angle. And then when is work done 0? When theta is 90. What is the best example of being answer 0? What is the best example of being answer 0? Anything which is performing circular motion. Moon performing circular motion around the earth. Earth performing circular motion around the sun.
electron performing circular motion around the nucleus, right? So suppose this is Earth and this is Moon. Then can I say between them there always exists centripetal force which is acting along the radius towards the center. फिर मून घूम के इधर आया तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे एक्ट करता है. फिर मून घूम के इधर आया तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे एक्ट करता है. Right? What is the definition of centripetal force? It is force acting along the radius towards the center. Point number 1. And what is the meaning of displacement? What is the meaning of displacement? ये डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर? टेंशन पे. ये डिस्प्लेसमेंट हुआ टेंशन पे. ये डिस्प्लेसमेंट हुआ टेंशन पे. तो बेटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देखो. Is it always 90 degree? Yes or no? And therefore, what is work done? What is work done? It is centripetal force dot displacement. So this is centripetal force into displacement into cos of 90. Always. That means work done by centripetal force is always zero. स्कूल में हम लोगों को क्या सिखाया गया था? Moon is complete in one circle around the earth. Then what is work done by moon? So we used to say zero. लेकिन उसमें अपना आर्ग्यूमेंट थीटा रिलेटेड था ही नहीं. हम लोग ये बोलते थे कि मून घूम के वापस अपनी जगह पे आया. डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देयरफॉर वर्क इज जीरो. बिकॉज़ स्कूल में डॉट प्रोडक्ट क्या है वो पता ही नहीं था हम लोगों को. जरूरी नहीं है कि मून एक सर्कल कंप्लीट करेगा देन ओनली वर्क डन इज जीरो. मून इधर से इधर आया सिर्फ, देन आल्सो वर्क डन इज जीरो. इधर से सिर्फ इधर आया, सिर्फ इधर, देन आल्सो इट इज जीरो. बिकॉज़ द रीजन इज डिफरेंट. हु इज द रीजन? थीटा. थीटा इज 90 and cos 90 is 0. अच्छे से समझा? That means this is the style of writing work done when this is the style of writing when theta is given. When theta is not given, how do we write it? Work done is equal to F S F S F S plus fx sx. याद करो बेटा, बहुत सारे प्रॉब्लम कर चुके हम लोग इसके ऊपर. So this is the formula of work done when f vector and s vector are given, and this is the formula of work done when theta is given. Yes or no? Work done may be positive, work done may be zero, work done may be negative. I am lifting this body up, right? Can I say then work done by my muscle power is positive because मैंने force ये direction में apply किया, displacement मुझे ये direction में दिख रहा है. But what about work done on this body against its weight? Right? For its weight, the body wanted to go down, but I lifted it up. So this is the gravitational force due to gravity, and this is the displacement. Force vector, displacement vector. Angle is 180. So my answer is Fs cos 180. My answer is negative. Yes or no? अच्छे से समझा? Super sure? अच्छा. Units and dimensions पता है सबको? Units and dimensions क्या होता है? Unit. What is unit of work? What is unit of work? Come on, school level knowledge. Joule, right? MKS unit of work is joule. Is joule. पूरा स्पेलिंग लिखते हो तो ऐसे, जे छोटा आना चाहिए, अदरवाइज ऐसे. CGS unit of work मालूम है? Earth. 1 joule is 10⁷ earth. मालूम है? जो भी नहीं मालूम है बिंदास बोल दो, मेरे लिए 5 मिनट का काम. ये मालूम है कि नहीं मालूम? Sure. 1 Newton is 10⁵ dyne. मालूम है कि नहीं मालूम? 1 Newton is 10⁵ dyne. ये मालूम है कि नहीं मालूम है? Newton is MKS, dyne is CGS. Joule is MKS, erg is CGS. ये समझा सबको? Super sure. ये सबको मालूम है? Right? Official unit of any form of energy या तो work is always joule. Official unit of work or any form of energy, sound energy, light energy, electrical energy, magnetic energy, atomic energy, chemical energy,
right? Thermodynamical energy, kinetic energy, potential energy, any form of energy is always joule. अब ये मुझे क्यों बोलना पड़ता है? Because sometimes we use convenient units. Sometimes we use convenient units. For example, entire board is visible. Yes. Yes. Convenient units. Convenient units. ध्यान से देखो बेटा. There is a unit called kilowatt hour. सुना है आप लोगों ने? What is 1 kilowatt hour? 1 kilowatt hour is 36 lakh joule. ये कैसे आया मालूम है? जिनको नहीं मालूम है, 1 kilowatt hour is 1 kilowatt of power consumed in 1 hour. Now 1 kilowatt is 1000 watt. In 1 hour means 3600 seconds. इसका मतलब this is 1000 joule per second for 3600 seconds. Second गया. That means is it 36 lakh joule? अपने घर में जो इलेक्ट्रिक बिल आता है ना, वो इसके ऊपर कैलकुलेट होता है, इसके ऊपर नहीं होता है. Though this is official unit, it leads to very big numbers. इसमें गवर्नमेंट को हर एक सेकंड पे वॉच रखना पड़ता है. नयन वर्मा के क्लास में 8:07 कितने लाइट्स ऑन थे, कितने फैंस ऑन थे, कितने एसीज ऑन थे, राइट? अभी कुछ ज्यादा ही ब्राइटनेस था तो सर ने 4 लाइट बंद की है, राइट? अभी बहुत ज्यादा ठंडी था तो एक एसी बंद किया, राइट? बाद में बहुत ठंडी लगी तो सब एसी बंद किया. फिर 10 मिनट के बाद बच्चों को गर्मी लग रही है तो फैन चालू किया, ब्राइटनेस कम लग रही है तो लाइट चालू किया. इतना सारा हेडेक. और बाद में वो बिल नहीं आएगा, बुक आएगा, राइट? बिकॉज गवर्नमेंट विल हैव टू गिव मी अकाउंट ऑफ 1 जुलाई to 31 जुलाई. मेरे क्लास में कौन से आवर पे कौन से डिवाइसेस ऑन थे. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट. इट इज वेस्टेज ऑफ पेपर ऑल्सो. यस सर. सो जो करोड़ों लोगों के घर में बिल आता है और बुकलेट फॉर्म में आता है, हम लोग सिंगल पेज भी नहीं पढ़ते. और अभी तो गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि गो ग्रीन, वाई टू वेस्ट द पेज ऑल्सो. आपको हम आपके ईमेल एड्रेस पे सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे, आप देख लो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो. सेव ट्रीज, डोंट कट ट्रीज. आर यू गेटिंग दिस? बिकॉज अल्टीमेटली यू विल हैव टू कट ट्रीज टू मेक पेपर, पल्प एंड पेपर. आर यू गेटिंग दिस? राइट? सो भले ऑफिशियल यूनिट ये है, बट ये कन्वीनियंट यूनिट. इट इज समथिंग लाइक ऑफिशियल यूनिट ऑफ योर एज इज सेकेंड्स. लेकिन आप अपना एज कभी भी सेकेंड्स में नहीं बोलोगे. रीजन वो कन्वीनियंट नहीं है. यू विल हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेकेंड्स. Yes or no? So you are saying I am 15 years 5 months old. Are you ज़्यादा से ज़्यादा आप डे की एक्यूरेसी बोलोगे और क्या बोलोगे? Are you getting this? Another convenient, ये सबको समझा? Another convenient unit is 1 calorie. 1 calorie is 4.2 joule. सुना है बेटा ये हीट में यूज होता है. Likewise 1 kilo calorie. राइट? ये कैलोरी का किलो कैलोरी किया ना मैंने, मतलब दोनों साइड पे मुझे किलो से मल्टीप्लाई करना चाहिए. So this is 4200 joule. अभी इसमें बेटा कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर 1 कैलोरी इज 4.2 जूल इज करेक्ट कि 1 जूल इज 4.2 इज कैलोरी इज करेक्ट. ये दोनों ना एकदम पास में देते हैं. तो हाउ टू अंडरस्टैंड 1 4.2 जूल कैलोरी, राइट? मैडम मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगा. I don't like idiot people in my class and I did not want to speak this in the live recording. Seriously, I am telling you. Show me your book. हाँ, अभी ये मैं तेरे डैडी को भेजूंगा कि दिस इज व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग कैमरा में, और इतना पोर्शन मैं तेरे डैडी को भेजूंगा और तेरा एडमिशन कैंसिल करूंगा. डोंट यू बिहेव लाइक दिस इन माय क्लास. यू आर सेफ बिकॉज यू आर नॉट रिकॉर्डेड. नहीं आना है क्लास में, नहीं आने का. आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ डॉक्टर्स टू बी मेड इन द सोसाइटी. इतना सारा फिजिक्स आते तो फुल मार्क्स लाके बताओ कितना आया लास्ट टाइम. जल्दी बोल. 175 ना, तो ये 5 गया ना. उतना फोकस रखता तो ये भी नहीं जाता. और या तो तुम्हारे में एटीट्यूड है, मेरा तो 175 आ गया ना, हर बार आएगा. कीप योर एटीट्यूड विद योरसेल्फ. शो योर एटीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स. आई विल बी वेरी हैप्पी. प्रूव मी रॉन्ग. अब मुझे पता नहीं कि इसमें से राइट कौन है रॉन्ग कौन है, क्योंकि ये दोनों मुझे क्लोज दिख रहा है. वेरी सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. J for ज्यादा एंड C for कम. मतलब ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग. राइट? 1 कैलोरी 4.2 जूल इज करेक्ट.
1 joule should have been 1/4.2 calorie. ये करेक्ट होगा. Is that clear? Likewise 1 4200 joule किलो कैलोरी. तो जूल किसके साथ जाएगा, किलो कैलोरी किसके साथ जाएगा? J4 ज्यादा, K4 कम. And trust me, this unit comes in physics also and chemistry also. Chemistry में भर भर के ये यूज होने वाला है. The name of the chapter is chemical energetics and thermodynamics. अभी कैलोरी और किलो कैलोरी हम लोग हीट चैप्टर में डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. When I take some food, तो मुझे ये देखना होता है कि वो फूड का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, मेरे बॉडी में जाके कितना कैलोरीज में ये कन्वर्ट होगा. अगर मैं ज्यादा शुगर खाऊंगा तो अनवांटेड एनर्जी आएगा मेरे बॉडी में और एंड आई विल बिकम ओबीस. देयर इज अ थ्रेट ऑफ डायबिटीज एंड ऑल दैट, राइट? सो डॉक्टर्स गिव यू द कैलोरीफिक वैल्यूज, राइट? व्हेन यू वांट टू रिड्यूस योर वेट और मे बी यू वांट टू इंक्रीज योर वेट, मे बी यू आर सुपर थिन और यू आर सुपर ओबीस, राइट? देन द न्यूट्रिशनिस्ट विल एडवाइज यू एज पर योर मेटाबॉलिज्म, कि आपका बॉडी कितना फूड डाइजेस्ट करता है, मेटाबॉलिक रेट क्या है. तो the nutritionist will have to study your pattern for a month and you will have to tell them the truth. आपने आधे घंटे में क्या खाया वो भी डायरी में नोट करना पड़ता है. And you have to give the perfect report to the doctor because then only they can guide you, right? So calorie or kilocalorie is a convenient unit. It is not the official unit. Official unit is always joule. Then you might have heard about इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सुना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is 1.6 into 10⁻⁻19 joule. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है this is a metallic wire connected to a battery of 1 volt and there is an electron inside whose charge is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So 1 electron volt का मतलब होता है 1 electron flowing under the influence of 1 volt of battery supply. So this is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb of charge flowing for 1 volt. So this into this is 1.6 into 10⁻⁻19. Coulomb into volt is joule. So what is 1 kilowatt hour? 36 lakh joule. What is 1 EV, electron volt? 1.6 into 10⁻⁻19 joule. What is 1 calorie? What is 1 kilocalorie? और ये कैलोरी और किलो कैलोरी थोड़ा राउंड फिगर है, माइंड यू. द करेक्ट वैल्यू इज 1 कैलोरी इज 4.1855 जूल. तो हम लोग उसको राउंड ऑफ करके 4.2 बोलते हैं. द करेक्ट वैल्यू इज 1 किलो कैलोरी इज 4185.5 जूल. दैट इज हाउ इट वाज कैलकुलेटेड बाय मिस्टर जूल. ये समझा? श्योर? कैलोरीज एक्सक्लूसिवली हीट के लिए यूज होता है. कैलोरीज यूज में हीट में यूज होता है, थर्मोडायनामिक्स. मतलब तो ये जूल्स एनर्जी के लिए भी इंटरकन्वर्ट हो सकता है. 100%. मतलब हम लोग जूल में भी लिख सकते हैं ये वैल्यू, बट नंबर बहुत बड़े बड़े आएंगे. नो मतलब उस लॉजिक से अगर मैं कोई खाना खा रहा हूँ, मैंने एक बिस्किट खाया, एक बिस्किट का पैकेट खाया और मेरे बॉडी में 350 कैलोरी ऑफ हीट आया, तो 350 को मैं 4.2 से मल्टीप्लाई करूँ, नंबर बहुत बड़ा दिखेगा. 14,100 1500 जूल दिख के आए. मतलब मैं जो बोल रहा था कि उस लॉजिक से तो आई कैन मेजर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एवरीथिंग इन कैलोरी. या ऑफ कोर्स दैट इज पॉसिबल. अलाउड बिकॉज दे विल इंसिस्ट कि चलो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जूल में ढूंढा, कैलोरी में होता तो कितना होता. इट इज समथिंग लाइक यू हैव सम करेंसी नोट्स. अभी तू दुबई जा रहा है तो तू डिवाइड बाय 23 करेगा कि ये मेरे पास 25,000 इंडियन रुपीज है, तो डिवाइड बाय 23 मतलब मेरे पास कितने दिरहम से. अभी तू वही 25,000 रुपीज लेके यूएस गया तो यू विल डिवाइड इट बाय 85 कि मेरे पास कितने डॉलर्स है, राइट? यूरोप की कोई कंट्री में गया तो यू विल डिवाइड बाय यूरो. So they can definitely ask you the question in any unit they want, no problem. मैंने इधर क्या लिखा है बेटा? Official unit is joule. बाकी आप कोई भी यूनिट में लिखो ना, they may insist also. Yes or no? Now 5-point program हमेशा ध्यान में रखने का. First you talk about the physical quantity definition wise, right? What is the meaning of work? It is the force of 1 Newton acting on a body to produce displacement of 1 meter in the direction of the force. So it should be Fs cos 0. It is the force of 1 Newton acting on a body to displace the body for 1 meter. Yes or no? In the direction of the force. ये हो गया unit, correct? Sorry, definition. उसके बाद में you should talk in terms of formula. तो formula में मैंने 2 formula लिखा. One is F dot S, another is Fx Sx, Fy Sy, Fz Fz.
सो वन इज fs cos थीटा, ये एक फॉर्मूला लिखा मैंने, ये दूसरा फॉर्मूला लिखा. सो 5 पॉइंट प्लान मीन्स व्हाट? डिफाइन, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन. डायमेंशन पता है क्या होता है? डायमेंशन तो पता है क्या होता है? ध्यान से सुनो डायमेंशन कैसे लिखते हैं. I will start with some very simple things. In the same book there is a chapter measurements. उसमें डायमेंशंस भर भर के आएगा. इनफैक्ट आपके नोट्स में 8-10 पेजेस भर के सिर्फ डायमेंशंस होगा. राइट? इज दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड कवर? इट इज कवर्ड. अगर बेटा मैं आपको किलोग्राम पूछता हूँ, किलोग्राम, बाद में आपको मैं मीटर पूछता हूँ, बाद में आपको मैं सेकंड पूछता हूँ, तो ये हर एक के लिए ना यू हैव टू राइट 3 थिंग्स. MLT, MLT, MLT. Actually, you have to write 5 things. M, L, T, K, C. M for mass, L for length, T for time, C for charge, coulomb, right? And K for temperature, Kelvin. अभी मेरे पास ये जो physical quantities लिखे हुए हैं, उधर किधर भी temperature आ ही नहीं रहा है. What is the meaning of kilogram? Unit of mass. Unit of mass. M stands for mass. तो उसका पावर लिखने का 1. अभी जब आप किलोग्राम की बात करते हो मतलब आप लेंथ की बात नहीं कर रहे हो और टाइम की भी बात नहीं कर रहे हो. सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ किलोग्राम? ये तो मास, m raised to 1, l raised to 0, t raised to 0. दिस इज हाउ वी राइट डायमेंशन. नेक्स्ट वाला है मीटर. मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. डोंट अंडरस्टैंड दिस एज मास बिकॉज मैं लेफ्ट हैंड साइड में सिंबल नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट लिख रहा हूँ. kg is the unit of mass. मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. बताओ राइट साइड में क्या लिखो? m0 l1 t0. समझा बेटा? नेक्स्ट इज सेकंड्स. m0 l0 t1. अभी मैं कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ. हाँ, कॉम्बिनेशन 2-3 ऐसे रैंडम कॉम्बिनेशंस लिखता हूँ, आप लोग मुझे सोच के बताओ. मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है? वेलोसिटी. वेरी गुड. मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? वेरी गुड. किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड. मास. वेरी गुड. मास इनटू वेलोसिटी. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? फोर्स. किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, गुड लक, किसका यूनिट है? हिंट ऊपर वाले को देखो. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एक मिनट, आपने इसके बारे में क्या बोला बेटा? इसके बारे में क्या बोला? मास, लेंथ, टाइम, स्पीड या तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम. इसको आपने क्या बोला? अभी फोर्स को मैंने मास से m से मल्टीप्लाई किया, मीटर से, राइट? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क हुआ या तो एनर्जी हुआ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो डायमेंशंस लिखो. डायमेंशन सीधा क्या लिखूं मैं? सब में MLT लिखने का पहले. MLT, 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 राइट? स्क्वायर ब्रैकेट सब जगह पे लिखने का. चलो बोलो. मीटर पर सेकंड डायमेंशंस. m0 l1 t minus 1. वेरी गुड. नो मास, लेंथ पावर 1, टाइम पावर -1. चलो नेक्स्ट. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. m0 l1 t minus 2. Next one, very good. m1 l1 t minus 1. Next. m1 l1 t minus 2. Next. m1 l2 t minus 2. ऐसा बेटा आपके बुक में 8-10 पेज भर के लाइन से डायमेंशंस होगा. ये बुक का चैप्टर 1 पे जाओ. ये बुक का चैप्टर 1 पे जाओ. अगर कोई ऐसा, हाँ ये पेज कौन सा है? जरा बैक पेज जाओ. और बैक पेज और बैक पेज और हाँ 23. अभी 23 से खाली पेजेस टर्न करते जाओ. देखो कितना पेजेस भर के डायमेंशंस है. ओहो, ये प्रैक्टिकली आपके पूरे फिजिक्स सिलेबस में जितने फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे ना सबके, हाँ उस सबके कौन से पेज से कौन से पेज तक है? पेजेस 23 to 34 पे डायमेंशंस है. बराबर. मैंने तो सिर्फ कुछ लिखे हैं. अभी सोच के बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ. व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वर्क? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वर्क? यस, कम ऑन.
What is dimension of work? MLT. Last one. M1 T minus 2. समझा बेटा? अभी तक 4 चीजें हुई. डेफिनेशन, फॉर्मूला या तो फॉर्मूले, यूनिट, डायमेंशन. पांचवा और आखिरी चीज उसका स्टेटस. स्टेटस मींस ये स्केलर है कि वेक्टर है. वेक्टर होगा तो डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करने का. वेक्टर है ही नहीं तो डायरेक्शन का पंगा ही नहीं है. तो व्हाट इज द फाइनल मोस्ट आंसर? इट्स स्टेटस. स्केलर की वेक्टर. समझा बेटा? तो ये वर्क का बेसिक स्टोरी हुआ. बेसिक. अभी तक मैंने हाई फाई पार्ट ऑफ वर्क एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ बेसिक स्टोरी जो हम लोगों ने ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट में किया हुआ था. यस और नो? रैपिड फायर राउंड. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? It is the force of 1 Newton producing a displacement of 1 meter in the direction of the force. That is the basic school level definition. What is college level definition? F bar dot S bar. What does that mean? Fs cos theta. That means theta also plays very important role. F S cos theta. Force zero नहीं है, displacement भी zero नहीं है, तो क्या वर्क zero हो सकता है? Theta is 90. ये आंसर आप स्कूल में नहीं दे सकते थे, क्योंकि स्कूल में आपको क्या बोला जाता है? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. कॉस थीटा एग्जिस्ट भी करता है कि वो आपको मालूम नहीं था. तो अभी मैं ऐसा बोलूंगा वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स जीरो नहीं है और डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, तो क्या वर्क जीरो हो सकता है? तो आपका स्कूल में आंसर क्या होता? नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कॉस थीटा करके कुछ एग्जिस्ट करता है मालूम ही नहीं था. तो स्कूल लेवल में वो आंसर करेक्ट था, लेकिन कॉलेज लेवल में आके पता चलता है कि नो, दैट वाज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला. अभी स्कूल में बेटा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं सिखाते हैं? सिंपल है. 10th स्टैंडर्ड के बाद हर एक स्टूडेंट साइंस लेगा ऐसा जरूरी थोड़ी है. तो जो स्टूडेंट साइंस नहीं लेने वाला है उसको ये सब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सिखा के क्या मतलब है? राइट? लेट दैट स्टूडेंट कम टू साइंस एंड देन वी विल टीच यू. इफ यू आर गोइंग टू कॉमर्स और आर्ट्स, व्हाई टू ट्रबल योरसेल्फ? फोकस ऑन नंबर्स, फोकस ऑन बैंकिंग, फोकस ऑन जीएसटी, फोकस ऑन कॉमर्स पार्ट ऑफ इट, फोकस ऑन पॉलिसीज, इंश्योरेंस पार्ट, फाइनेंस इन सिंपल लैंग्वेज. इसलिए स्कूल में नहीं सिखाया. इसका मतलब ये नहीं था कि स्कूल में जो सिखाया था वो रॉन्ग था. It was a limited knowledge of work. Now you are exposed to still higher level knowledge. समझा यहाँ तक? Definition, formula, unit, dimension and status. ये 5 चीज हमेशा आनी चाहिए फिजिक्स में. Okay. Next and the last definition of the day is, because after that I will make you write this part, only this part. ये बेटा सारा आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, तो इसमें से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये पार्ट कॉपी करोगे. Next and the last part of the day, power. बेटा आपका स्कूल लेवल नॉलेज. What is power? Is it work upon time? Right? कॉलेज लेवल नॉलेज सोच के बोलना. पावर इज वर्क अपॉन टाइम बेटर है कि dw अपॉन dt ज्यादा बेटर है? इंस्टंटेनियस. इंस्टंटेनियस पावर का सिंबल भी P ही है. इनफैक्ट मोर एक्यूरेटली वी राइट दिस इज P in. पावर इंस्टंटेनियस. इसको कभी कभी हम लोग लिखते हैं PAV, पावर एवरेज. एवरेज पावर, इंस्टंटेनियस पावर. अब मैं इंस्टंटेनियस पावर ऐसे लिख रहा हूं, तो बेटा पहला और दूसरा फॉर्मूला में कौन बेटर है? मतलब ज्यादा एक्यूरेट कौन है? यस, बिकॉज फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हाट वाज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, देन दैट आंसर आल्सो यू कैन गिव. मैं मॉर्निंग 7 o'clock से 9 o'clock तक ये क्लासरूम यूज कर रहा हूँ, ये डिवाइस यूज कर रहा हूँ, मेरे एसीज ऑन है, तो मैं 2 घंटे का एवरेज पावर कंजम्पशन गिनूंगा. लेकिन कोई अगर मुझे बोल दे कि ना 8 o'clock and 17 minutes पे कितना पावर कंज्यूम हुआ था, तो मुझे वो एग्जैक्ट मोमेंट पे भी आंसर देने को ये फॉर्मूला से आएगा. नाउ द फिजिक्स वे ऑफ सेइंग इट. फिजिक्स वे ऑफ सेइंग इट, इसको आप क्या बोलोगे बेटा? रेट ऑफ डूइंग वर्क बराबर रेट ऑफ डूइंग वर्क. समझा? एंड ऑफ कोर्स इट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये इसका फिजिक्स वर्जन है, लेकिन आप इसको मैथमेटिक्स में कैसे बोल सकते हो? कम ऑन, मैंने सिखाया है. नो नो नो, या somebody say correctly. डेरिवेटिव या तो परफेक्ट परफेक्ट. डी बाई डी टी क्या हुआ बेटा? इज इट डेरिवेटिव ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दोनों सही है बेटा. पहला वाला कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू सही है? फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? और दूसरा वाला
मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों सही है. इज दैट क्लियर? दिस इज मोर सिस्टमेटिक. दिस इज मोर सिस्टमेटिक. अब ये हो गया पावर. पावर का डेफिनेशन भी हो गया, पावर का फॉर्मूला भी हो गया. पावर का और एक फॉर्मूला याद करो बेटा. इफ पावर इज वर्क अपॉन टाइम, दैट मींस इट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हियर यू आर. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. सो कैन आई से पावर का एक और फॉर्मूला हुआ फोर्स डॉट वेलोसिटी. इसके ऊपर से दो फॉर्मूले हुए, इसके ऊपर से दो फॉर्मूले हुए. बोलो पहला वाला फॉर्मूला पावर इज एफ.वी. cos थीटा. कैन पावर बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो? डेफिनेटली यस. दैट विल बी डिसाइडेड बाय थीटा, राइट? नेक्स्ट, अगर थीटा नहीं दिया तो पावर इज एफ.वी. एंड एफ.वी. एंड एफ.वी. एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड. तो बेटा डेफिनेशन हो गया. इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, या तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये डेफिनेशन हुआ. ये पॉसिबल फॉर्मूले है 1 2 3 4 5. अब इसका यूनिट, कम ऑन, सीक्वेंस ये है ना. व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर? यस, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, राइट? रिटन एज W. कन्वीनियंट यूनिट्स, कन्वीनियंट जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है. कन्वीनियंट यूनिट्स याद करो बेटा. आपने ये सुना है 1 किलोवाट, 1 मेगावाट, 1 गीगावाट. 1 किलोवाट मीन्स 1000 वॉट. 1 मेगावाट मतलब 1 मिलियन वॉट. 1 गीगावाट मतलब 10⁹ वॉट, राइट? मेगा एंड मिलियन मीन द सेम. गीगा and billion mean the same. Tera and terillion mean the same. If any country reaches this level of generating power in the country, that means that country is very very developed energy wise. वहाँ पे energy crisis आएगा ही, right? India is heading towards that. In fact, we have so many power stations that we can give power or electricity to the neighboring small countries also, right? We give energy to Bangladesh, we give energy to Sri Lanka, Nepal, Maldives, right? Because we are big power generating country. If you go to Europe and UK and France and all that, again they have got big power stations, solar power energy stations, nuclear power stations and all that. So this is one very very important thing to generate power. That will add to the GDP, whether you are a developing country or a developed country or you are a poor country. So this is very 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 important. Next, you must have heard about horsepower. 1 horsepower is 746 watt. Sometimes in problems they give a round figure, 750 watt, right? Giga and billion mean the same, but billion we use at some places and giga we use at some places. When you want to talk about population of a country, you will say we are 1.4 billion people, Indians. There we don't say 1.4 giga people. But when you talk about the memory of your phone, right? I am having iPhone having the inbuilt memory of 256 GB. तो वहाँ पे हम लोग BB नहीं बोलते हैं. हालांकि करेक्ट वो भी है. Billion bytes, 10⁹. GB, gigabytes. So in electronics usually we prefer kilo, mega, giga, tera, etc. Whereas in practical life we use million, billion, trillion. India is a $4.5 trillion economy, heading towards $5 trillion economy and so on, right? Developing country, when you cross a particular limit, that means you are already a developed country, right? So then you get, some powerful special rules which you can enjoy. For example, veto power in UN. So there are some developed countries are there. US is there, then UK is there, France is there, China is there, Russia is there, right? तो veto power मतलब 4 जन जो कुछ बोल रहे हैं और मैं 5वां बोल रहा हूँ ना, 4 जन ने यस बोला, मैंने बोला नो, तो 4 जन का यस भी उड़ जाता है. I am using my veto power. Are you getting this? Then you cannot go democratically. Either all or none. The rule is either all should say yes or none. Then only it can be overruled. कन्वीनियंट यूनिट समझा बेटा. डायमेंशन सोच के बताओ, हिंट देता हूँ. आपके पास वर्क का डायमेंशन ऑलरेडी है, m1 L2 T-2. नाउ पावर इज वर्क अपॉन टाइम.
एक मिनट बेटा, इसका यूनिट क्या आएगा? ये वॉट का एक्चुअल यूनिट क्या होगा? वॉट का मीनिंग क्या होगा? इसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड, है ना? वर्क अपॉन टाइम. सो इज इट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब. तो बेटा डायमेंशन क्या होगा? m1 m2 t-3. और स्टेटस क्या हुआ? ऑब्वियसली स्केलर. स्टेटस क्या हुआ? स्केलर. यस और नो? So first lecture means all basics, right? All the basics. Next time onwards we will head towards little complicated thing, then more complicated thing, then MCQs. अभी तक मैंने बोर्ड पे जो 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 लिखा बेटा सब समझा. सुपर श्योर. ध्यान से सुनो, आपको क्या कॉपी करना है. आपको ये पार्ट कॉपी करना है. प्रेफरेबली किधर कॉपी करना है? अगर आपके पास ये पेज है अभी, राइट, तो ये पार्ट ब्लैंक है. अगर आपने ये पेज बुक में चिपका दिया है, नो प्रॉब्लम. देन आई एम गिविंग यू दिस नोट्स जस्ट नाउ. These are temporary notes of the book. In that book which is going to come, there are 3 chapters. One is work, power and energy. Second is surface tension. And third is dual nature of light. Dual nature of radiation. Right? In the chapter ray optics, you must have heard that light exhibits mass nature also, wave nature also. It is exhibiting particle nature also and radiation nature also. तो इसका लास्ट पार्ट ब्लैंक है बेटा. ये आपके बुक के ही प्रिंट आउट से, आपकी बुक में बिल्कुल ये सेम पेजेस है, लेकिन बुक अभी बाइंडिंग में है तो मैं बुक दे नहीं पा रहा हूँ आज, राइट. तो ये आपके बुक का 11 पेजेस तक का प्रिंट आउट है. मतलब अपना 2 लेक्चर तक काम चल जाएगा. मेरा अभी नेक्स्ट लेक्चर कल है, फिर परसों है. अगर सपोज कल तक नोट्स नहीं आया तो आई माइट हैव टू गिव यू 7-8 पेजेस मोर. जैसे ही बुक आ जाता है यू कैन डिस्कार्ड दिस पेजेस. लेकिन इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखवाने वाला हूँ, राइट. ये सारी एक्स्ट्रा चीजें बुक में ऐड करके बाद में ये पेजेस डिस्कार्ड करने का, तब तक नहीं करने का, राइट. आई एम गिविंग यू दिस so you can use the last page of that. This is blank. इधर आप ये ऐड कर सकते हो. अभी मैं कुछ 2-3 चीजें एक्स्ट्रा ऐड करवा देता हूँ. Will you please pass on these notes? Extra copies back to me, please. Little fast. Please write your name and batch. Yeah, take your copy first. ऊपर बेटा नाम लिखो अपना और बैच लिखो. When it comes to you, let me know. Extra copies back, please. Are you on the very first page? Are you on the very first page? इधर बेटा इधर. इधर आपको कुछ लिखना है. Take down, please. Take down. Official unit. Official unit of work. Official unit of work or any form of energy. Official unit of work or any form of energy is always joule. Is always joule or earth. जूल किस में बेटा? MKS में. और अर्थ किस में? CGS. बराबर. Such that 1 joule is 10⁻⁷ earth. 1 joule is 10⁻⁷ earth. तो बेटा 1 earth कितना होगा? 10⁻⁷ joule. 10⁻⁷. अभी उधर एक और 1 joule is 10⁻⁷ earth. राइट. अभी नीचे को और सेंटेंस लिखो. The convenient units of work, the convenient units of work or energy are expressed or are given on page number 5. The convenient units of work or energy are given on page number 5. एक जरा temporary page number 5 पे जाओ please. Temporary page number 5 पे जाओ.
somewhere at the middle of the page do you see units? उसमें देखो एक अर्ग लिखा होगा, बाद में शायद EV लिखा होगा, किलोवाट आवर लिखा होगा और कैलोरी लिखा होगा. एक और लिख लो प्लीज. वहाँ पे लिखा है 1 कैलोरी इज 4.2 जूल. लिखो 1 किलो कैलोरी इज 4200 जूल. 1 किलो कैलोरी is 4200 joule. Right? I will give you time to read what all things we have done from this 11 pages today. Okay. Are you on page 2? Do you see the diagram of circle over there? Second from the top. उधर बेटा ये कमेंट लिखो. आपको चाहिए ना, तो ये उधर ऑलरेडी फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दिखाया होगा. Am I right? इधर लिखो. Work done is centripetal force dot displacement. Circular motion. Page number 2. उसमें बेटा कोई तो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 पॉइंट में से कोई तो एक पॉइंट होगा जिसमें थीटा 90 होगा. हाँ 0 होगा थर्ड पॉइंट है. राइट. तो उधर आप लिखो फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. थर्ड पॉइंट के बाजू में बहुत सारा ब्लैंक स्पेस है. उधर लिखो फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन centripetal force is compulsory. For a particle performing circular motion, centripetal force is compulsory. Next line. W is FCP dot S. FCP dot S. That means it is FCP into S into cos 90. FCP into S into cos 90. That means it is 0 always. That means it is 0 always. अब एकदम ध्यान से सुनो मैंने क्या क्या कर लिया है. ध्यान से सुनो. पेज नंबर 1 मैंने पूरा सिखा दिया. पेज नंबर 1 पे एकदम नीचे टिक करो. पेज नंबर 2 में I have taught you upper 1/3 of the page. Do you see the next title, work done by a variable force? That we will learn tomorrow. Then do you see work done by several forces? That we will learn tomorrow. Then do you see one note on the same page, page 2, that we will learn tomorrow. तो उधर सबके आगे पेंसिल से डॉट करके रखो या तो पेंसिल से सर्कल करके रखो. मतलब ये पार्ट पेंडिंग है. Are you on page 3 now? Upper half page taught power, instantaneous power, units of power, dimensions, everything. डायमेंशन ऑफ पावर दिया है कि नहीं बेटा? दिया है ना. तो बाद में नोट के बाद वाला पार्ट बाकी है. ठीक है, नोट के बाद वाला पार्ट बाकी है. एफिशिएंसी बाकी है. आर वी नाउ ऑन पेज नंबर 4? कंप्लीटली पेंडिंग. कंप्लीटली वो पेज से मैंने कुछ भी नहीं सिखाया है. हाँ. आर यू ऑन पेज नंबर 5? अपर हाफ डन. एवरीथिंग बिफोर काइनेटिक एनर्जी डन. Everything before kinetic energy done. तो आज के लेक्चर में मैं यहाँ तक जा रहा हूँ. Okay? Tomorrow when we meet, we are meeting for 3 consecutive days. Tomorrow when we meet, you will master derivatives, you will master integration. और ये 5 पेज भी मैंने पूरा नहीं सिखाया. 1 completely taught, 2 half taught, 3 half taught, 4 not taught, 5 half taught. उतना अच्छे से पढ़ के आना. तो प्रैक्टिकली राइटिंग वर्क फॉर टुमारो इज नथिंग. नो राइटिंग वर्क, बट प्लीज रिवाइज इट नाउ. यस एवरीवन, अंडरस्टूड द लेक्चर ऑफ द डे? ओके, काइंडली स्टॉप द रिकॉर्डिंग.